જય સિયારામ ભક્તો. સંતોની વાતો અનેરી હોય છે. જેમ કે સંત નરસિંહ મહેતા, તુકારામ અને કબીર સાહેબ થઈ ગયા. આજે આપણે વાત કરીશું કબીર સાહેબની. અને સંતોની ભક્તિ, સંતોનું ભજન બહુ અનેરું હોય છે. એમની ભક્તિના કારણે ભગવાને સાક્ષાત હાજર થવું પડતું હોય છે. એટલે સંત કબીર સાહેબ ભક્તિમય જીવન જીવતા અને આજે આપણે એમની દીકરીના વિવાહનો પ્રસંગની વાત કરીશું. તો એ પહેલાં આ ચેનલને લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો. કબીર સાહેબની દીકરીના વિવાહ નજીક આવ્યા અને કબીર સાહેબ ભજનમાં લીન રહેતા હતા. એ પોતે ગુજરાતીમાં કહું તો શાયદ વણકર, પંજાબીમાં જુલાહા હોઈ શકે. એટલે એમનું કામ જે છે તે કાપડ, ખાદીનું કાપડ ગૂંથવાનું હોતું હતું. અને કાપડ ગૂંથતા ગૂંથતા સંધ્યા ટાઈમ ભગવાનનું ભજન કરી જતા. અને પછી સંધ્યા ટાઈમ થાય એટલે એક આસન ઉપર બેસી અને ભગવાનનું ભજન કરી જતા. હવે ભક્તિમય લીન સાધુ સંતો આવે તો એમના ત્યાંથી પાછા ના જાય. કંઈ પણ દક્ષિણા અથવા તો કંઈ પણ મળ્યું હોય, ભક્તિ ભજન કરવા ગયા તો પણ કોઈને આપીને આવતા. આવા એમના સ્વભાવ. અને કહેવાય છે કે વૈષ્ણવજન તો તેને રે કહીએ જે મન અભિમાન ન આણે રે. એટલે એમને સંતને કોઈ અભિમાન પણ નથી હોતું. અને એમની દીકરીના વિવાહનો પ્રસંગ નજીક આવતો જાય છે. એમણે કોઈ તૈયારી કરી નથી હોતી દીકરીના વિવાહની. અને ગામ લોકોમાં અંદર અંદર વાતો થતી જાય છે કે ભાઈ કબીરજીના દીકરીના વિવાહ, કમાલીના વિવાહ નજીક આવે છે અને કબીરજીએ કોઈ તૈયારી નથી કરી. ના તો દાન દહેજની, ના કોઈ કપડાં લત્તાની, ના કશું જ મહેમાનોની આગતા સ્વાગતાની. આ બધી વાતો ગામમાં થતી જાય છે. એમ ધીરે 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 એમના સંબંધી જે હતા વેવાઈ, એમને પણ કાને વાત પહોંચી. અને જ્યારે એમના મમ્મીને ખબર પડી એટલે કબીરજીના માને, ત્યારે એ બહુ ચિંતિત થયા. અને એમને એક દિવસ શાંતિથી બેસી અને કબીરજીને વાત કરી, બેટા આ આપણે કોઈ બચત નથી કરી દે અને તું કપડાં ગૂંથતા ગૂંથતા ભજનમાં લાગી જાય છે. પણ પૂરો સમય તું કપડાં ગૂંથવામાં અને કામમાં લાગી જા, જેથી કરી અને આપણે વિવાહના ખર્ચ જોવું પણ કમાઈ શકીએ. ત્યારે કબીરજી કહે છે કે માં, રામનું ભજન, નિરંકારીનું ભજન, જેને મને જન્મ આપ્યો છે એનું ભજન કેમ છોડી દેવું? આપણે એને ભજતા રહીશું તો એ આપણું કામ કરી દેશે. માં કે તું એમ કહેતો રહેશે કે ભગવાન આપણું કામ કરશે? અવશ્ય કરશે. આપણું અટકવા નહીં દે માં. તોય માતાજીને ચિંતા બહુ થતી હોય છે. ત્યારે માતાજીએ કહ્યું છે કે મેં એક कापड़ ताको खद्दर का थान छुपा के रखा था, क्योंकि मेरे को डर था कि कहीं तू साधु संत तो दे देगा, कुछ नहीं बचेगा, इसीलिए एक खद्दर का थान तेरे को देती हूँ. ये जाके तू बेच के थोड़ा बहुत सामान जो मिले, बच्चों के लिए कपड़े, तेरे लिए कपड़े और मिठाई वगैरह सब लेके आ. अब 3 ही दिन बाकी रहा है. तो कबीर जी वो लेके निकल गए. रास्ते में एक साधु मिला. संत वो बोल रहे, साधु कहे भाई कबीर जी का घर किधर है? वो पूछ रहे हैं कबीर जी के घर का पता. कबीर जी को ही कबीर जी के घर का पता पूछ रहे हैं. कबीर जी कहो भाई महात्मा जी क्या काम है? तो कि मेरे को थोड़ा कपड़ा चाहिए था. तो बोले इतना का है, इसमें से थोड़ा फाड़ के दे दूं? साधु के नहीं, आप ऐसा करो, मेरे को कबीर जी का घर का पता ही बता दो. कबीर जी ने बोला
मन में सोचा कि कबीर जी का घर बताऊंगा, मेरी मम्मी इसको अनसन कुछ बोलेगी, इसके अलावा बोलो महाराज आपको कितना कापड़ चाहिए। तो महाराज ने बोला ये थान जो है, मतलब जो कपड़े का ताका तेरे पास है वो दे दे, वो मेरे को पूरा हो जाएगा। उन्होंने दे दिया, नहीं सोचा कि अब मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं, साधु को दे दिया। फिर बाद में सोचने लगा कि अब मैं घर कैसे जाऊं। तो जाके नदी किनारे बैठ गए घर जाने की बजाय। 3 दिन ही बाकी थे दीकरी के विवाह के, और भगवान से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु मैं सबको बोलता हूँ कि भगवान के पर श्रद्धा रखो, विश्वास रखो, भगवान हमारा काम जरूर कर देगा। आज मेरी बेटी का विवाह है, मैं मुश्किल में हूँ। और वहाँ नदी पर बैठ कर भगवान का भजन ही करते रहे। और इस तरफ 3 दिन पूरे हो गए हैं, सब मेहमान लोग आ रहे हैं और उनकी मम्मी टेंशन में है कि अभी कबीर जी आए नहीं है, क्या होगा। तब दरवाजा किसी ने खटखटाया, माँ। और माँ सुन के माँ ने जाके दरवाजा खोला तो एक बैलगाड़ी में खींचो खींच भर के सब बच्चों के लिए नए शाही कपड़े, उनके लिए कपड़े, सब मिठाई और सब चीजें लाके रख दी। माँ अचंभे पड़ गई, बेटा इतना सारा सामान तू कहाँ से लाया। माँ आपने जो एक खद्दर का थान दिया था वो एक रईस आदमी को, अमीर आदमी को बेच दिया और उसने सारे पैसे दिए, इसकी वजह से मैं ये सब ले आया हूँ। और सब रख दिया और सब मेहमान सब आ गए, सबका आगता स्वागता हो गया। बहुत अच्छी तरह से मकान घर को श्रृंगार कर दिया। और फिर में बारात आई, बारात का भी अच्छी तरह से स्वागत हुआ, खाना पीना धाम-धूम से हो गया। सबको अनेक प्रकार की मिठाई मावा और सब व्यंजन मिले, बहुत खुश हो गए। गांव में कई लोग तो ऐसे थे जो कबीर जी की हंसी उड़े इसमें ही मजा रखते थे, लेकिन वो ऐसा देख के वो भी अचंभे में पड़ गए कि यार इतनी शानदार विवाह हुआ कैसे, ऐसी शादी तो हमने कभी देखी ही नहीं। और बाराती लोग खाना बैठे तो खुद कबीर जी जूठे बर्तन उठाने लगे। माँ ने हाथ पकड़ा, बेटा तो दीकरी का बाप है, ऐसा काम नहीं सोचता है। माँ मुझे सेवा करने दे, आज मैं सेवा कर रहा हूँ। माँ को लगा कि कबीर जी बदले बदले रह रहे हैं, लेकिन सब पतने के बाद पूछूंगा, सब काम काज हो जाए बाद में पूछेंगे। सब दीकरी की विदाई सब हो गया। रात को थके हारे वो कबीर जी आसन के ऊपर जाके बैठे। तब माँ ने पूछा, बेटा अब बता ये सब बंदोबस्त कैसे हुआ। कबीर जी बोले, माँ मैं आज थका हूं, कल सुबह में सब बात बताऊंगा, जाके सो जाओ। सब जाके सो गए। और जब सुबह में उठ के माँ ने इसके दरवाजे में देखा तो कबीर जी नहीं है। जो संबंधी थे उसको पूछा कि कबीर जी को कहीं देखा। संबंधी बोला, रात को तुम चढ़फड़ कर रही थी तो शायद नाराज होके चले गए होगे। तो माँ को याद आया कि जब वो नाराज होता है वो नदी के तट पर चला जाता है। माँ वहां गई तो वैसे ही कबीर जी बैठे हुए थे। तो माँ ने बोला, बेटा इतनी सी बात पे नाराज हो गया, मैंने तो तेरे को पूछा था कि इतनी शानदार शादी की व्यवस्था तो कैसे की। कबीर जी अब अचंभे में पड़ गए, माँ शादी हो गई तो कि हाँ, तूने तो सब बैलगाड़ी में लाके सब कपड़े लत्ते और मिठाई सब ले आया था और अच्छी तरह से घर को श्रृंगार किया, सब शानदार। और वो बाराती का स्वागत किया। और तेरे को याद दिलाऊं तो जूठे बर्तन था, तब मैंने बोला था तू दीकरी का बाप है, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं माँ, मैं तो जब
खान साधु को दे गया था और 3 दिन से यहाँ ही बैठा हूँ, चल चल घर जाके बात करते हैं। फिर घर जाके माता जी ने सब बोला कि ऐसा हुआ था। तब कबीर जी बोले, माँ 3 दिन से मैं नदी किनारे बैठा था। तू कहती है ना भगवान किसी का काम कैसे करता है, तो देख आज भगवान मेरा स्वरूप लेके आ गया। माता जी को भी ऐसा लगा कि खरेखर भगवान कबीर जी का स्वरूप लेके आके मेरे घर सब काम करके चले गए, मैं पहचाना नहीं। ऐसे श्रद्धा और भक्ति और विश्वास होता है तो हर एक काम भगवान कर देते हैं, सबका काम हो जाता है। जय सिया राम। भक्तों, श्रद्धा और विश्वास से भगवान ऊपर रखो तो कोई दिवस काम भगवान अटकवा देता नहीं। जय सिया राम।